Hello students, we are going to solve exercise 3.1 and in our previous video we have solved question number 1 and 2. Now we are going to start question number 3 and the question is find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it perfect square. Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square. यानी एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिसको गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. ओके, तो हाउ टू सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. सो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3f and the question is 700. In 700 we will find out by which smallest number 700 we multiply to make it perfect square. Okay, so first of all we will find out prime factors of 700. Okay, now solve 2 divided 700 gives 350. Now 2 divided 350 gives 175. Now 175 divided with 5 gives 5 3 are 15, 2 5 5 are 35. Now 5 divided 35 up to 7 times and 7 divided 7 up to 1 means we will get prime factors of 700 as 2:2:5:5:7. Now if you make pair of these number we will get 2 5 and 1 number, that is 7 is left which has no pair. It means that to make 7 pair we will multiply 7 with another 7. So to make 700 a perfect square. Now we will write 2 to power 2, 5 power 2, 7 power 1. It means that 7 must be multiplied. 7 must be multiplied in 700 to make it perfect square. Perfect square. Okay, एक बार और समझते हैं इसको. 700 में कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स एंड आफ्टर प्राइम फैक्टर्स वी विल मेक पेयर्स ऑफ द गिवन फैक्टर्स. सो इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड दैट a number 7 which has no pair. So another number 7 we multiply in 700 to make it perfect square. Okay, now we are going to solve question number 4. Now we are going to question number 4 and the question is find the smallest number by which the given number must be divided to make it perfect square. Find the smallest number by which the given number must be divided to make it perfect square. Now we will start with the number 8112, 8112. So in this number we will find a smallest number by which the given number must be divided to make it a perfect square. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रीवियस मेथड अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक नंबर ऐसा मिलेगा जो पेयर बनने के बाद भी एक्स्ट्रा मिल रहा है. ठीक है, तो उस नंबर को अगर हम डिवाइड करके हटा दें तो हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके सारे फैक्टर्स क्या पे पेयर में होंगे. इट मींस दैट we will find the perfect square of the given number. So
first of all, we will find out prime factors of the given number 8812. Okay. Now divided with 2, we will get 456. Now divided with 2, we will get 2028. Again divided with 2, we will get 1014. Now again divided with 2, we will get 2 5 are 10, 2 7 are 14, 507. Okay. Now this number, digit of the number, that is 5 plus 0 plus 7, that is 12. It means that the given number is divided with 3 according to the law of divisibility. So this number is divisible by 3. Now divide this number. 3 1 are 3, 3 6 are 18, or 3 9 are 27. Now again check 1 plus 6 7 and 9. 7 9 16. It means that this number is not divided with 3. Okay. So first of all, find out by which number 169 is divisible, and then make pair of it. Okay. Again, we will find out factors of the given number. यहाँ पे आपके करने के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। आप 169 का फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, सारे फैक्टर्स को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद आप उसके पेयर्स बनाएंगे। ठीक है। जिस नंबर का पेयर आपको फाइंड आउट नहीं होगा, इट मींस दैट वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे गिवन नंबर डिवाइड होगा। ओके। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन 4. ओके। नाउ we will move forward and try to find out division method या long division method to find out square root of a given number. Find out square root of a given number. ठीक है। इसकी जरूरत यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में सॉल्व करते समय लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। ओके। So first of all, try to find out long division method to find the square root of a given number. सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So long division method to find out square root. Okay. So we take a number 999 and we will find out the square root of 999 by long division method. So how can we solve? First of all, we make pair from unit place से हम पहले नंबर की पेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे? यूनिट प्लेस से मूव करते हैं लेफ्ट साइड में, तो 9 9 यानी एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है। और एक नंबर यहाँ पे लेफ्ट कर गया, यानी इसको हम यहीं पे ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है। इसके
कोलॉन डिवीजन मेथड से स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर गिवन नंबर के बराबर हो या उससे छोटा हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट अ नंबर which divided by itself get a number less than or equal to the given pair। यहाँ पे आपको पेयर नहीं दिख रहा है तो आप अपने समझने के लिए जीरो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे जो पेयर है हमारा 9 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट अ नंबर बाय विच नंबर मल्टीप्लाइड itself get a number which is less than or equal to 9। So we get a number 3 multiplied with 3 gives 9, which is equal to the given number। Okay, so first pair of the number which has taken is 3। So we write 3 up to 3 times here and 1 times here। Okay, now add this number 3 plus 3 that is 6 and put 6 लेफ्ट फ्रॉम हियर। ये सब 6 को यहां पुट करेंगे, एक प्लेस इसके आगे छोड़ देंगे। ओके, 3 और यहां पे 3 3 9 पे यहां रखेंगे वो सेम को, और क्या करेंगे जैसे हम डिवीजन करते हैं उस सेम प्रोसेस यहां पर फॉलो करते हुए यहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 0। ओके, नाउ अब यहाँ पे डिवीजन करते समय हम एक डिजिट को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम स्क्वायर को फाइंड आउट कर रहे हैं और स्क्वायर को फाइंड आउट करते समय हम क्या करते हैं, जो पेयर होता है जस्ट बात का उस पूरे पेयर को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पेयर यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, नाउ चूज अ नंबर हियर सच अ वे दैट मल्टीप्लाइड नंबर बाय इटसेल्फ gives a number less than or equal to 99। मींस 6 के आगे एक ऐसा नंबर हम चूज करेंगे जिसका फिर से इसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 99 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, 1 नीचे रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो गेट 61। ओके, इफ वी टेक 2 हियर देन वी विल गेट 2 to the 4, 2 6 are 12, 124 which is greater than 99। so 2 is not taken here, we will take 1 here। Okay, proceed the same process, 1 up to 2 times here and 1 times here। now add this number and write here 62 and 61 multiplied with 1 gives 61, right here, and then after subtracting we will get 8 38। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आगे प्रोसीड करने के लिए कोई भी नंबर नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे। और डेसिमल यूज करते समय ध्यान देंगे, डेसिमल इसके बाद यूज करेंगे तो यहाँ पे भी डेसिमल से अप्लाई करेंगे और इसके आगे हम पेयर्स लिखते जाएंगे जीरो के। ओके, अब हमारे पास 38 है, 38 के आगे हमको प्रोसीड करने के लिए क्या करना होगा, एक पेयर हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, वी टेक अ पेयर हियर। नाउ चूज अनदर नंबर हियर which multiplied by itself gives a number which is less than or equal to 3800। ओके, सो इसको प्रोसीड करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं हम। जैसे हमने 1 लिया, 1 लेने के बाद क्या आएगा, 621 which is very smaller than 3800। so we proceed further and taking another number and try to find out the number which is less than or equal to 3800। if you take 2 then we will get 2 to the 4, 2 to the 4, 2 6 are 12 which is also less than 3800। now proceed for another number। if you take 4 here then multiply 4 with 624 we will get 4 4 are 16, 4 2 are 8 1 9 and 4 6 are 24। okay, which is also less than 3800। now we will try for another number which
दैट इज फॉर 5। 5 के लिए अगर हम टेस्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं क्या मिलता है। तो 5 लेते हैं, अगर 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12, कैरी 1 एंड 5 6 जा 30 एंड 1 31। ओके, मीन्स एक नंबर और हम प्रोसीड कर सकते हैं। चेक करने के लिए है, आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं लॉन्ग प्रोसीजर इसके फॉलो कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि 6 से या 7 से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15, 5 कैरी 1, 6 6 जा 36, 1 37, which is very close to 3800, which is very close to 3800. It means that if we take 6 here, if we take 6 here, then we get a number which is very close to 3800. That is 3756. 3756. Okay. Now subtracting, we will get 10 minus 6 4, 9 minus 5 4, 7 minus 7 0 and 0. That is 44. Okay. अब यहाँ पे 44 एज रिमाइंडर आपको मिल रहा है। अब इसके आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट अ नंबर अप टू डेसिमल 3 प्लेसेस, यानी ऐसा नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हो, वहां पे जाकर प्रोसेस को रोक देंगे। ओके, तो हमने आपको एक डेसिमल के 1 प्लेस तक करके दिखाया। आप सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए डेसिमल के 3 प्लेसेस तक के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, और जितना ज्यादा आप डेसिमल के राइट में जाएंगे उतने ही क्लोज नंबर आपको 999 पे मिलेगा। ओके, सो आप ट्राई ये करेंगे कि आप कम से कम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करें जो कम से कम डेसिमल के 3 प्लेसेस तक जाए। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है, बट जहां पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है वहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है। इन दिस केस वी विल अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो in our next video we will solve question number 5th and 6th.